Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in practical organic chemistry. Today, our experiment is esterification. In this experiment, we will prepare ethyl benzoate starting from benzoic acid and ethyl alcohol. So the reaction of carboxylic acid with ethanol and formation of ethyl benzoate ester, this is known as esterification. Either you take methanol or ethanol or any alcohol, whenever carboxylic acid they react with any alcohol giving us ester, this reaction is known as esterification. So let's start with preparation of ethyl benzoate. For example, we have benzoic acid plus ethanol. This reaction is reversible. Acid catalyst, and we have ethyl benzoate ester, our product, and byproduct water is produced. So this reaction is reversible because water, it hydrolyzes this ester and giving us carboxylic acid. So it means आपकी ये जो ethanol है, it must be dried. So if you used super dried ethanol for the preparation of ester or to perform esterification, then आपकी जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो बेहतर होगी. बट इफ एथेनॉल इट कंटेन वाटर, देन इट अफेक्ट द यील्ड ऑफ योर प्रोडक्ट. सो दिस रिएक्शन, अगर आप इसकी जो है वो थ्योरी की बात करें, देन दिस रिएक्शन इट इन्वॉल्व टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट. उसमें वी हैव COOH प्लस C2H5OH, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लेना होगा. ये आपके पास इंटरमीडिएट है. This is tetrahedral intermediate because this carbon is sp2 hybridized and in this case this carbon is sp3 hybridized. So this tetrahedral intermediate then converted into product. अब ये जो आपके पास ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज अल्कोहलिक ऑक्सीजन. सो इट मीन्स कि जो क्लीवेज है वो यहाँ से हो रही होती है. सो इट मीन जो आपके पास एस्टर में कार्बोनाइल पार्ट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये ऑक्सीजन नहीं, बल्कि ये जो है वो एथेनॉल की ऑक्सीजन या किसी भी अल्कोहल की ऑक्सीजन होती है. एंड दिस फैक्ट इट इज प्रूव्ड बाय लेबलिंग एक्सपेरिमेंट. मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, अगर आप जो है वो स्टेप वाइज मैकेनिज्म को डिस्कस करें, देन फर्स्ट वी हैव C डबल बॉन्ड OH carboxylic acid plus C2H5OH, this positive. This is, it is produced, this oxonium ion is produced by alcohol plus concentrated H2SO4. ये सल्फ्यूरिक एसिड इसकी जो है वो प्रोटोनेशन कर देगा, एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ दिस. Protonation of this carboxylic acid oxygen and formation of this type of oxonium ion. And second step is the attack of this alcoholic oxygen. दूसरे स्टेप में जो है वो आपके पास we have
ethanol. So oxygen of this alcohol attacks at this carbon, double bond shifted to oxygen, and we have COH, OH and O, C2H5H. So it means when oxygen attacks at carbon, it donates its electronic pair. In this case, it forms 3 covalent bond. This oxygen, when it forms 3 covalent bond, it is positively charged, oxonium type ion. And then another molecule of alcohol, it abstracts this hydrogen. The next step. So in next step, we have COH, OH and OC2H5. So this is the tetrahedral intermediate, and in later stage this tetrahedral intermediate is further protonated. In next step we have OH, OH and OC2H5 और ये आपके पास है C2H5 OH is positively charged. So this oxygen it is protonated. ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जो है वो लग जाएगी. And we have COH2 positive, OH and OC2H5. So here we have water. This water it can be removed here in the later step. अगर आप इसे जो है वो नेक्स्ट स्टेप को यहाँ शो करता हूँ. We have COH positive and OC2H5. Then this water is removed and we have COH and OC2H5 प्लस ये आपके पास H2O. दिस ऑक्सीजन जैसे ये जो है वो पुश करेगी इस वाटर के रिमूवल को, इट फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड, अगेन इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. एंड इन द फाइनल स्टेप ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे जो है वो आप कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज इट कैन बी रिमूव्ड OC2H5 ये जो है वो इसे रिमूव करेगा. एंड यू हैव द फाइनल प्रोडक्ट इथाइल बेंजोएट और आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और ये फिर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेट करके इस रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करेगी. सो इट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन को आपके पास दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन एंड देन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप then we obtain this final product ester. This ester along with the formation of byproduct water, and that's why the water it has ability to hydrolyze this ester back into carboxylic acid. और चूंकि आप ये रिएक्शन जो कैटलाइज कर रहे होते हैं, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड by the presence of concentrated sulfuric acid. तो अगर आप हाइड्रोलिसिस को डिफाइन करें, then hydrolysis is also cleavage of any substance in the presence of water in which water HOH bond is also cleaved. और ऐसी हाइड्रोलिसिस जो आप एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हो, इट इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस. एंड द हाइड्रोलिसिस विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस इज नोन एज बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस. तो इसलिए जो स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है इन जनरल अगर आप देखें, देन वी हैव RCOOH प्लस R प्राइम OH, देन यू हैव RCOOR प्राइम प्लस वाटर, और ये है आपके पास कैटलिस्ट. तो अगर आप जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन को देखें तो ये असल में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है.
Okay, so if you want to improve the yield of your product, then your alcohol it must be super dried, बिकॉज अगर उसमें जो है वो मॉइस्चर होगी तो वो आपकी जो है वो यील्ड को, एस्टर की फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, नो द प्रोसीजर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, अगर आप इसके जो है वो प्रोसीजर को डिस्कस करें, देन वी हैव you have benzoic acid plus ethanol concentrated H2SO4, molecular weight, इसका molecular weight, mass, इसका mass या volume। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस बेंजोइक एसिड, अगर आप जो है वो 7 कार्बन 84, 2 ऑक्सीजन 32 एंड 6 हाइड्रोजन, सो इट विल बिकम 122 ग्राम पर मोल। अब आपने ये रिएक्शन लगाना है, सपोज आप जो है वो 3 ग्राम से ये रिएक्शन लगा लें, या 2 ग्राम से लगा लें, या 1 ग्राम से लगा लें, या अगर आप जो है वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो आप जो है वो 10 ग्राम या 20 ग्राम, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये रिएक्शन लगा सकते हैं। मोलर रेशियो अगर आप देखें, देन 1:1 मोलर रेशियो। देखिए यहाँ आपके पास जो एथेनॉल है, इट कैन आल्सो एक्ट एज अ रिएक्टेंट एंड आल्सो सॉल्वेंट। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्कोहल जो है वो आपका रिएक्टेंट भी हो और सॉल्वेंट भी हो, उस केस में आप जो है वो इसकी एक्सेस क्वांटिटी लेते हैं। बट अगर आप यही रिएक्शन जो है वो हायर अल्कोहल के साथ, सपोज आप जो है वो ब्यूटानोल के साथ कर रहे हों, तो आप इसकी बजाय इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करेंगे, कोई और सॉल्वेंट जो है वो फॉर एग्जांपल बेंजीन या कोई भी और सॉल्वेंट जिसमें ये दोनों रिएक्टेंट सॉल्युबल हों, तो उसे आप जो है लेंगे। उस केस में आप 1:1 मोलर रेशियो रख के आप इसकी यील्ड जो है इसकी जो है वो क्वान्टिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस एथेनॉल, अगर आप इसे जो है वो कैलकुलेट करें, वी हैव 2 कार्बन 24, 1 ऑक्सीजन 16 and 6 hydrogen, so it's 46 ग्राम पर मोल। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका रिएक्टेंट मेथेनॉल या एथेनॉल हो, या हर बार आपका जो दूसरा रिएक्टेंट है वो एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट कर रहा हो। अगर आपकी बेंजाइल अल्कोहल है, सपोज आप बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं दूसरा रिएक्टेंट, तो फिर इसको आप एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आप कोई और सॉल्वेंट जैसे आप बेंजीन या आप कोई ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो इन दोनों को डिज़ोल्व कर ले लेकिन रिएक्ट ना करें। सो प्रोसीजर ऑफ दिस रिएक्शन, अगर आप इसका जो है वो मैस निकालना चाहें, वॉल्यूम निकालना चाहें, तो ये 1:1 मोलर रेशियो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 ग्राम, अगर आप इसके मोल्स कैलकुलेट करें, मैस ओवर मोलर मैस 3 डिवाइडेड बाय 122, तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। इन्हीं मोल्स को फिर सपोज ये ए हैं, तो इसके भी जो है वो मोल्स जो होंगे वो ए मोल्स होंगे, और ए मोल्स को आप इस मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू बी, तो ये इसका मैस आ जाएगा। इसी मैस को अगर इसकी डेंसिटी से जो है वो, जो डेंसिटी वाला फार्मूला है D इज इक्वल टू M ओवर V, तो आपके पास मास है, डेंसिटी है, आपने वॉल्यूम निकालना है, V इज इक्वल टू M ओवर D। इसी M को जो है वो जो मैस है आपका एथेनॉल की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, या जो भी अल्कोहल है उसकी डेंसिटी से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है किसी भी रिएक्शन की, जब आप कोई रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगे। सो इट मीन्स 3 ग्राम ऑफ दिस बेंजोइक एसिड, आप इस 3 ग्राम बेंजोइक एसिड को जो है वो ले लें राउंड बटन फास्ट में, ठीक है। इसमें आपके पास 3 ग्राम बेंजोइक एसिड, फिर इसमें आप जो है वो डाल दें alcohol, ethanol. This ethanol, it may be 15 ml,
और 20 ml, इतनी आप जो है वो इसमें अल्कोहल ले लें कि ये जो बेंजोइक एसिड है इट विल बिकम सॉल्युबल इन दिस ethanol. Okay, then you have a solution of your benzoic acid in ethanol. और फिर आप जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कैटलिस्ट डाल दें, दिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें देन इफ़ यू हैव सपोज 3 ग्राम इसके आप मोल्स कैलकुलेट करें तो राउंड अबाउट आप इसके जो है वो 4 ड्रॉप्स 6 ड्रॉप्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंसनट्रेटेड के आप यूज़ कर सकते हैं 0.27 ml। इस तरह आप इसकी जो है वो क्वांटिटी इट आल्सो वेरीज, आप 4 ड्रॉप्स डाल लें 8 ड्रॉप्स डाल लें, इस तरह आप जो है वो कैटलिस्ट जो है वो डाल लें एंड देन यहाँ आप कंडेंसर लगा दें। सो रिफ्लक्स दिस रिएक्शन मिक्सचर at the end, then you reflux this reaction mixture up to the completion of the reaction. It means आपने first you have benzoic acid 3 gram benzoic acid mixed with ethanol 15 to 20 ml ethanol and then some sulfuric acid, concentrated sulfuric acid 0.27 ml of concentrated sulfuric acid. Then mixture was refluxed for 4 hours 5 hours or 6 hours up to the completion of the reaction. Progress of the reaction it can be monitored by thin layer chromatography. अगर आप जो है वो ये आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, आप एक जो है वो TLC प्लेट ले लें, इस TLC प्लेट पे आप जो है वो ये बेंजोइक एसिड लगा दें, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है R लिख लें। फिर ये जो है आपके पास ये है RM रिएक्शन मिक्सचर, यहाँ आप लगा दें RM रिएक्शन मिक्सचर और इसे आप जो है वो एक बीकर में ले लें या TLC छोटी आप जो है वो वायल ले लें जिसमें TLC आप रख लें और यहाँ आप ले लेंगे मोबाइल फेस। मोबाइल फेस में आप जो है वो N-हेक्सेन और इथाइल एसीटेट, N-हेक्सेन इथाइल एसीटेट का जो है वो मिक्सचर ले लें। आप इसे जो है वो सॉल्वेंट सिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है वो एक TRC करें उसके रिजल्ट्स आपके पास आएँ तो आप देन यू कैन सेलेक्ट द सॉल्वेंट सिस्टम। एनी हो अगर आप इसे जो है वो सिलेक्ट करें देन 3:1 रेशो ले लें या 4:1 रेशो ले लें, कोई एक रेशो जो है वो आप इसकी सेट कर लें। सपोज अगर आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिस इज अवर रिएक्टेंट बेंजोइक एसिड एंड दिस इज रिएक्शन मिक्सचर, ओके, दिस इज बेसलाइन सॉल्वेंट फ्रंट और ये आपके पास इट शो दैट सम ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स और स्टिल इसमें बेंजोइक एसिड जो है वो अनरिएक्टेड है। अब अगर जो है वो आप 3 आवर्स के लिए 4 आवर्स के लिए 6 आवर्स के लिए से जो है वो रिफ्लक्स करते हैं, एक स्टेज पे जो है वो इस तरह अगर आपके पास सिचुएशन आती है देन यू हैव इट मीन मोस्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये जो है वो एस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ आप जो है वो रिएक्शन स्टॉप कर लें। सो व्हेन मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट सो इट मीन्स योर रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इसमें जो एथेनॉल है सो एक्सेस ऑफ द एथेनॉल इज रिमूव्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। आप इसे जो है वो रोटा वेपरेट कर दें, रोटी पे वेपरेट कर लें तो आपके पास एक रेजिड्यू आ जाएगा। फिर आप इसको जो है वो इस रेजिड्यू को ले लें, आप इसे ले लें सेपरेटिंग फनल में। इसमें आप ले लें एंड देन इसमें आप कोई भी सॉल्वेंट डालें। सपोज अगर आपने एक्सट्रैक्शन करनी है CCl4 में ये ले लें, या अगर आपने एक्सट्रैक्शन करनी है इथाइल एसीटेट में उसमें आप ले लें, ठीक है। तो इट मीन्स ये आप जो है वो अगर आप सपोज CCl4 में करते हैं तो आपके पास जो 2 लेयर्स बनेंगी, लोअर लेयर आपकी
लोअर लेयर आपके पास CCl4 की होगी और अपर लेयर आपके पास एक्वस लेयर है, वाटर जो है वो होगा। अगर आप इथाइल एसिड में एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अपर लेयर जो है वो इथाइल एसिड की होगी और लोअर लेयर आपके पास एक्वस लेयर होगी। सो इट मीन्स योर प्रोडक्ट इथाइल बेंजोएट, it can be extracted in organic solvent, either CCl4 or ethyl acetate, and then we have some unreacted benzoic acid in our reaction mixture. The unreacted benzoic acid, it can be removed by washing with सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। अगर आपके पास ये रिएक्शन मिक्सचर है, उस रिएक्शन मिक्सचर में सपोज दिस रिएक्शन मिक्सचर इट कंटेन्स कुछ अनरिएक्टेड बेंजोइक एसिड है, कुछ आपके पास इथाइल बेंजोएट है, वाटर था, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर इसे वाटर से वॉश करेंगे, ये दोनों तो जो है वो एक्वस लेयर में जो है चले जाएंगे, ये आपके पास ऑर्गेनिक लेयर में है। तो फिर आपने इसे ट्रीट करना है NaH 5% NaHCO3 सोल्यूशन से, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन से। दिस सोडियम बाइकार्बोनेट ये जो है वो बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके इसका साल्ट बना देगा। इन दिस वे यू कैन रिमूव दिस सोडियम benzoate because this is water soluble. So in this way we can remove this unreacted benzoic acid by the formation of sodium benzoate salt reacting with सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बात आप याद रखें, जब आप इस एक्वस लेयर में आप जो है वो इस एक्वस लेयर को आपने डिस्कार्ड कर दिया, आपके पास ऑर्गेनिक लेयर है। ऑर्गेनिक लेयर को जब आप ट्रीट कर रहे होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के सोल्यूशन के साथ, तो आपने जो है वो बहुत ज़ोर से उसे शेक नहीं करना, क्योंकि इस रिएक्शन में जो है वो जहाँ सोडियम बेंजोएट बनेगा, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इसलिए जो है वो आप उसे थोड़ा सा शेक करें, फिर आप जो है प्रेशर रिलीज़ करें, फिर आप शेक करें, प्रेशर रिलीज़ करें। ऑल दीज एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स आई विल एक्सप्लेन इन माई अपकमिंग लेक्चर, जहाँ मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँगा। एनी हाउ यू मस्ट बी केयरफुल when you extract your product and when you wash the organic layer with sodium bicarbonate solution, because when you shake this mixture carbon dioxide is evolved, तो वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा उस सेपरेटिंग फनल में। तो इसका आपने जो है वो ख्याल रखना है। सो जब आप इसे जो है वो वॉश करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के साथ, उसके बाद जब आप TRC करेंगे तो आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स होंगे। सपोज दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज़ वो जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर जो आपके पास ऑर्गेनिक लेयर है। तो यहाँ जो है वो जब आप इसे करेंगे रिएक्टेंट यहाँ, और ये आपके पास प्रोडक्ट, इस यहाँ जो है वो अनरिएक्टेड बेंजोइक एसिड सारा जो है वो आपने रिमूव कर लिया। इन दिस वे यू प्योरीफाई योर प्रोडक्ट इथाइल बेंजोएट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड बाय बैरेंट्स केमिकल इक्वेशन। अगर आप इसकी जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बेंजोइक एसिड जो बैरेंट्स केमिकल इक्वेशन है वो आपके पास benzoic acid, ethanol and your ethyl benzoate, 1 mole it gives us 1 mole। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो आपके पास बेंजोइक एसिड 122, उस 122 से आपने एक हाइड्रोजन जो है वो माइनस किया, तो ये आ गया 121। 2 कार्बन इसमें आपने ऐड किए 24, 1 ये ऑक्सीजन ऑलरेडी थी, एंड 5 150। ओके, अगर आप जो है वो डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यू हैव 6 कार्बन है, 7 एंड 8 9 कार्बन, 9 मल्टीप्लाई बाय 12, और आपके पास 2 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और आपके पास 5 हाइड्रोजन ये हैं, एंड 1 2 3 4 5 ये हैं 10। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 108। अगर आप 12 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करें तो 108 एंड 32 एंड 10, तो ये आपके पास 150 हो जाएगा। ओके, सो इट मीन 150 ग्राम पर मोल, ये आपके पास मास है।
molecular mass of ethyl benzoate. So it means 1 mole of benzoic acid gives us 1 mole of ethyl benzoate. 122 gram of benzoic acid gives us 150 gram of ethyl benzoate. 122 gram of benzoic acid gives us 150 gram of ester. और 1 ग्राम कितना देगा? 150 डिवाइडेड बाय 122. और आपने रिएक्शन लगाया 3 से 150 डिवाइडेड बाय 122 मल्टीप्लाई बाय 3. सपोज ये इसका आंसर है ए. सो ए इज थ्योरेटिकल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड. अब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आफ्टर यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, जो आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड, सपोज इट इज बी ग्राम. ठीक है, तो आपने जो है वो एक्सट्रैक्शन की. आफ्टर एक्सट्रैक्शन देन यू रिमूव द सॉल्वेंट. जो आपके पास इथाइल स्टेट में अगर आपने एक्सट्रैक्शन किया या कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक्सट्रैक्शन की है, देन यू रिमूव द सॉल्वेंट एंड योर प्रोडक्ट, वो जो उसका जो वे करेंगे आप ड्राई करने के बाद, वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड है. एंड देन वी कैलकुलेट द परसेंट यील्ड इज इक्वल टू आपके पास एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield multiply by 100. experimental yield B, theoretical yield A multiply by 100 is equal to आपके पास ये सपोज C आ जाता है. सो C is your percentage yield. ये आपके पास 80% है, 90% है, 95% है. It depends upon the purity of your reactants. अगर आपके पास एथेनॉल सुपरड्राइड है, इस पर जो है वो डिपेंड करेंगे. एंड देन आल्सो हैंडलिंग. सो इन दिस वे अगर आप ये सारी जो है वो प्रिकॉशन जो है वो करते हैं, देन यू कैन इम्प्रूव द यील्ड ऑफ योर रिएक्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रेपरेशन ऑफ इथाइल बेंजोएट starting from benzoic acid and ethanol, which is catalyzed by the presence of sulfuric acid. In my upcoming lecture, I will discuss the experiment. I will perform the experiment in which ethyl benzoate it will be prepared. Thank you very much.